નમસ્કાર, આસ્થા મેગેઝીન .ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સ્મિત સુજિત્રા અને હવે થોડા જ દિવસોની અંદર હોળી આવશે, ધૂળેટી. એનો માહોલ પણ જામવા માંડ્યો છે. માણસને બે વસ્તુથી એકદમ વધારે આનંદ થતો હોય છે, મોજ થતી હોય છે. એક છે રંગ અને બીજું છે તરંગ, લય. જેમને લય સાથે, તરંગ સાથે ગરબો છે, એવા એક વ્યક્તિ સાથે આજે મુલાકાત કરવાની છે. એમનું વ્યક્તિત્વ સખત મહાન છે, પણ એ માણસ તરીકે અને આપણે એમને મળીએ તો એટલા ડાઉન ટુ અર્થ છે કે આપણને એમ થાય કે એમની સાથે બેસીને વાતો જ કરીએ. મહેંદી હસન ખાન સાહેબ સાથે આજે આપણે વાર્તાલાપ કરવાનો છે અને ચોક્કસ એમને આપણે સાંભળવાના પણ છે. એ આપણને ચોક્કસથી સંભળાવશે જ. આપનું સ્વાગત છે આસ્થા મેગેઝીન .ન્યૂઝમાં. નમસ્કાર, આદાબ. સાહેબ, મેં સાંભળ્યું છે કે હિન્દી ફિલ્મોની અંદર કે જે કવ્વાલીનો જે દોર હતો, કવ્વાલીને જે હિન્દી ફિલ્મોની અંદર જે લઈને આવ્યા છે, જેમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે, જી, એ તમારા ઘરાના અંદરથી તમારા જે પૂર્વજો છે. મારા ગ્રાન્ડફાધર. હા, કવ્વાલી બોલિવૂડમાં સૌ પ્રથમ મારા દાદા ઉસ્તાદ બંદે હસન આગરેવાલા એ લઈને આવ્યા. એમણે કવ્વાલીની શરૂઆત કરેલી અને એમના ગુરુ ખાન મસ્તાના અને બંદે હસન, આ બે બહુ મોટા નામ છે. આ લોકોએ બોલિવૂડમાં કવ્વાલીની શરૂઆત કરેલી અને મારા દાદાએ ઘણી બધી એ બોલિવૂડની ફિલ્મોમાં પ્લેબેક સિંગિંગ કરેલું અને એમને પડદા ઉપર પણ બતાવેલા છે. અને મારા ફાધરની ઉંમર એજ 14-15 હતી. તો મારા ફાધરને પણ અબુલ હસન ખાન એમનું નામ હતું, એમને પણ પડદા ઉપર બતાવેલા છે. અને નૌશાદ સાહેબ માટે ઘણા બધા કમ્પોઝિશન્સ કરેલા મારા ગ્રાન્ડફાધરે, મદન મોહન માટે કરેલા. અને એક સોંગ તો એમનું બહુ જ જાણીતું છે કે જે કમ્પોઝિશન મદન મોહને કર્યું છે એવું લોકો કહે છે, પણ એ કમ્પોઝિશન મારા દાદાનું હતું કે મેં તો તુમ સંગ નૈન મિલા કે, એ મારા ગ્રાન્ડફાધરનું હતું. લોકો મદન મોહનના નામે જાણે છે. એવા તો અનેક ગીતો હતા કે મારા ગ્રાન્ડફાધરે કમ્પોઝ કરેલા, પણ નામ એમનું ના આવેલું પડદા ઉપર. અને એમનું બહુ મોટું યોગદાન હતું ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, બહુ મોટું યોગદાન હતું. જી, એટલે એવા આપણે જે ગીતો સાંભળીએ છીએ અને આપણને એમ થાય કે શું કમ્પોઝિશન છે, શું શબ્દો છે, આના જે સંગીત છે એ કેવું જબરદસ્ત છે. એનું કમ્પોઝિશન રાજકોટના કોઈ વ્યક્તિએ કરેલું છે અને એ આપણને તો એમ થાય છે કે મદન મોહન સાહેબે કરેલું છે, પણ એનું કમ્પોઝિશન આપણે રાજકોટની આપણી વચ્ચે જે વ્યક્તિ રહી ગયેલા છે એમને કરેલું છે અને એમના વારસદારો અત્યારે જે રીતના કામ કરી રહ્યા છે. એટલે ઘણી વસ્તુ એવું થાય છે કે ઓહો, આ જોવો તો કેટલું સરસ એમ. મારી સફર 3.5 વર્ષની ઉંમરથી જ શરૂ થઈ ગયેલી. 3.5 વર્ષે એટલે અત્યારના છોકરાઓને તો 3.5 વર્ષે ઘણાને તો સરખું ચાલતાય નથી આવડતું. ત્યારે પર હું મીડિયા સાથે છે ને 3.5 વર્ષની ઉંમરથી જોડાયેલો છું. કેમ કે હું નાનો હતો તો મારી પહેલી ગુરુ મારી પરદાદી હતી. मेरी परदादी मुझे थोड़ा हिंदी में आवश्य है बच्चे वांधो नहीं है, केम के मेरी परदादी जो थी वो पानदान, बहुत खूबसूरत पानदान था उनके पास, पान खाने की शौकीन थी वो. तो पीतल का बहुत नक्शी काम किया हुआ पुराने ज़माने का पानदान था उनके पास, तो वो उस पर ठेका बजाती थी और वो भी लेफ्टी थी इत्तेफाक से. तो वो पान, उनका नाम हैदरी था, हैदरी, और बहुत खूबसूरत आंखें थी उनकी, बहुत ब्यूटीफुल थी वो मेरी परदादी. मेरे फादर की दादी, मतलब मेरे दादा की माँ, तो वो रिदमिस्ट थी, बहुत अच्छी ढोलक भी बजाती थी वो, तबला भी बजाती थी वो. तो वो मुझे सिखाती थी पानदान पे. मैं 2.5 साल का था तो मेरे अंदर रिदम थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो घर में जन्म हुआ था मेरा, घर के अंदर, हॉस्पिटल में नहीं. तो हम लोगों में ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देते हैं पहले. तो अजान की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी. गुलाम कादिर खां साहब, उस्ताद गुलाम कादिर खां, पर जो पंडित जसराज और अरविंद परिक के गुरु रह चुके हैं, और मंजू मेहता और गीता साराभाई, इन सब के गुरु रह चुके हैं. वो लीजेंड थे, बहुत बड़े लीजेंड थे वो. उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, आमिर खां के साथ के थे वो, जिनको टॉप ग्रेड गवर्नमेंट ने दिया था. तो उन्होंने मेरे कान में अजान दी थी, गुलाम कादिर खां साहब ने. तो इतनी सुरीली अजान मेरे कान में पड़ी और उसके बाद
सीधा वो दाई ने मुझे निला के मेरे चाचा की गोद में रख दिया। तो मेरे चाचा रियाज कर रहे थे उस वक्त, तो कानों में सबसे पहले तबले की आवाज़ गई। तो ये तब से पहले दिन से ही दुनिया में मैंने कदम रखा तो तबले की आवाज़ कान में गई, तो मुझे चेप लग गया तबले का, तो रूह मेरी रिदम की बन गई। तो तब से पहले दिन से ही सफ़र शुरू हो गई थी मेरी तबले की। मेरे पाँव थिरकने लगे, हाथ थिरकने लगे। तो 2.5 साल का हुआ तो दादी मुझे सिखाती थी ठेका बजाना, तो तब से तालीम शुरू हो गई थी 2.5 साल की उम्र से। फिर 3 साल का हुआ तो गाँव तकिए पे बैठ के ना दिन दिन ना ऐसे कॉपी करता था मैं चाचा को सुन के। उनका रियाज सुनता रहता था, उनकी गोद में सो जाता था, कभी बैठा रहता था। तो माहौल घर में बहुत अच्छा था। उसके बाद ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा बजाने लगा मैं सुन के। फिर तालीम शुरू हो गई, चाचा सिखाने लगे मुझे, थोड़ा थोड़ा सिखाने लगे। फिर बाल सभा में जाने लगा, 4 साल का हुआ तो बाल सभा में जाने लगा। फिर एक बार बिरानी हाई स्कूल में 4 साल की उम्र में मैंने मेरी लाइफ का पहला परफॉर्मेंस दिया। चाचा का सम्मान था, तो बजा के उठे तो मैंने उनका कुर्ता पकड़ लिया कि मैं भी बजाऊंगा। तो चाचा ने बोला नहीं, इशारा कर रहे थे वो कि जिद मत करो। ऑडियंस ने देख लिया कि बच्चा जिद कर रहा है। ऑडियंस ने बोला इसको बजाने दो, पब्लिक कहने लगी इसको बजाने दो। तो मेरी लाइफ का पहला परफॉर्मेंस था। 4 साल की उम्र में मैंने बिरानी हाई स्कूल में सोलो बजाया था। तो तब से सफर शुरू हो गई બજાને કી એટલે બાળકોને નાનપણમાં આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ સવારમાં શિરામણ મળે, તો કલા જ શિરામણમાં નાનપણથી મળે છે કે ભાઈ સવારે શું તો કે ભાઈ તા દિન દિનના એટલે આપણે સવારે ભાખરી ને ખાઈએ. અત્યારે નાના બાળકા હોય તો એને કે ચોકલેટ ને પાઉંભાજી ને કે ભાઈ પાણીપુરી ને ખાવું છે, તો એને નાનપણથી જ શું શોખ તો કે ભાઈ મારે એટલે જેને નાનપણથી જ શિરામણની અંદર કલા મળતી હોય એ આ લેવલ સુધી પહોંચવાના હોય અને પહોંચ્યા જ છે. તો હવે નેક્સ્ટ ધીમે ધીમે તમારું 4 વર્ષની ઉંમરે પહેલું પરફોર્મન્સ રાજકોટની અંદર હતું. પછી તમને જે ઓડિયન્સે માંગ કરી, લોકોએ કીધું કે ના એમને ચાન્સ આપો, એમને વગાડવા દો, અને લોકો દીવાના થઈ ગયા. પછી એમના પછીની તમારી સફર કેવી રીતના હતી? 4 વર્ષે તમે એવી રીતના પછી બાલસભામાં રેગ્યુલર વગાડવા લાગ્યો હું આકાશવાણીમાં. નાની બેન મોટી બેન કરીને હતા આકાશવાણીમાં, 2 બહેનો હતી. એમના મને નામ તો યાદ નથી અત્યારે, પણ બહુ વર્ષો જૂની વાત છે એટલે નામ ભૂલી ગયો છું હું. પણ નાની બેન મોટી બેન કરીને 2 બહેનો હતા અને એ લોકો અમને બહુ પ્રેમ આપતા. તો મારા નિતેશજી મારા બીજા ગુરુ છે, પંડિત નિતેશ ચક્રવર્તીજી અને અઝીમુદ્દીન ખાન સાહેબ આ ત્રીજા ગુરુ હતા મારા. તો એ લોકો પણ આકાશવાણીમાં હોતા, તો એમના દીકરાઓ એમના છોકરાઓ પણ આવતા બાલસભામાં. તો નિતેશજીના બંને છોકરાઓ દેવ્યાની દીદી અને દેવાશીષભાઈ, તો એ પણ આવતા અને હું પણ જતો. અઝીમુદ્દીન ખાન સાહેબના છોકરાઓ બી આવતા બાલસભામાં અને હું પણ જતો. તો અમને લોકોને બહુ આનંદ આવતો અને હું દરેક पार्टिसिपेट साथ वगाड़ता. जो भी बाल सभा में जो भी बच्चे गाते बजाते उनके साथ मुझे भी ही बजवाया जाता था कि मेहंदी बजाएगा. उनके साथ संगत भी करता था और हर बाल सभा में मुझे 2 मिनट 5 मिनट सोलो बजाने का मौका दिया जाता था और सब तालियां बजाते थे. ऐसे बाल सभा पूरी होती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था. और स्कूल में असेंबली में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता था. प्रेयर में बजाता था मैं, डेली प्रेयर में मेरा तबला होता था. हर जगह, हर स्कूल में, प्राइमरी में, हाई स्कूल में, सब जगह मैंने बजाया. फिर 4.5 साल की उम्र में जाकिर भाई जब घर पे आए राजकोट में, तो मेरी मदर से कहने लगे कि ये बच्चा मुझे दे दो. जाकिर हुसैन ने मेरी मदर से कहा, बोले भाभी ये बच्चा मुझे दे दो. मेरी मम्मी ने इनकार कर दिया, बोले ये तुझे बम्बई तक पहुंचने नहीं देगा. लंदन तो बहुत दूर की बात है, वो लंदन ले जाना चाहते थे मुझे. तो मेरी माँ ने बोला बम्बई से वापस आएगा, लंदन तो बहुत दूर की बात है, ये छोटा है, मेरे बगैर नहीं रहेगा. तो वो चांस गया मेरे हाथ से. पर मैं आज ये सोचता हूँ कि काश मैं चला गया होता तो अच्छा होता, आज कुछ और बात होती. गोल्डन चांस गया मेरे हाथ से. ना आज कुछ, लेकिन आज भी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भी हम सबको इंस्पायर, हमारे लिए तो इंस्पिरेशन ही है उनकी. ये आपकी मोहब्बत है, आपका भाव है कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझसे, मुझे इतनी मोहब्बत और इज्जत दे रहे हैं. ये आप लोगों का बड़प्पन है और मेरी खुशकिस्मती है.
પછી ધીમે ધીમે મોરારી બાપુની કથાની અંદર પણ તમે જે એમાં પણ કામ કરો છો, એમાં પણ તમે તબલા, તો એ સફર ક્યારથી તમારી શરૂઆત થઈ? ये तो मुरारी बापू के साथ सफ़र तो बहुत लेट शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले का मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब वीरानी हाई स्कूल में मैं गया 5वीं से 1 to 4 मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। सूचक शाला नंबर 9 में पढ़ता था मैं, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा मुझे। तो वहाँ पे भी असेंबलीज़ में मैं बजाता था और मुझे बच्चे बहुत प्यार करते थे। गवर्नमेंट स्कूल थी लेकिन उसके फंक्शन होते थे तो मुझे बहुत मौका मिलता था बजाने का, परफॉर्म करने का। तो सब शिक्षण अधिकारी आते थे तो मुझे शाबाशी देते थे, शील्ड मिलता था, मुझे सर्टिफिकेट मिलते थे, इनाम मिलता था। तो मेरे टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा नाम हो गया था, चारों तरफ मेहंदी मेहंदी होता था। तो फिर मैं 5th में गया वीरानी में, तो मुझे एडमिशन भी बहुत अच्छे से मिल गया। वीरानी में टैलेंटेड बच्चों को ही देते थे, क्योंकि गुजरात में वीरानी का बहुत नाम था, राजकोट में बहुत बड़ा नाम था वीरानी का। तो मुझे एडमिशन दे नहीं रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मेरा नाम वाम देखा कि ये इसका रिकॉर्ड अच्छा है और तबला भी बजाता है, तो मुझे एडमिशन दे दिया। फिर वहाँ पे प्रेयर में बजाने लगा मैं स्कूल में, तो वहाँ भी मेरा नाम होने लगा स्कूल में, सब टीचर्स प्यार करने लगे मुझे। फिर अमूलक भाई भट्ट करके एक टीचर थे हमारे नाटक के, ड्रामा के, उनका ध्यान मुझ पे पड़ा तो वो एक फॉर्म लेकर आए स्कॉलरशिप का, जो दिल्ली गवर्नमेंट टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। इंग्लिश में था तो मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी, 5वीं के बच्चे को क्या इंग्लिश आएगी, क्योंकि गुजरात में ऐसा उस टाइम में, हमारे ज़माने में इंग्लिश का दौर नहीं था, गुजराती ज़्यादा था। तो मुझे तो काला अक्षर भैंस बराबर। मैं फॉर्म लेके आया घर पे, मैंने चाचा को दे दिया, चाचा ने रीड किया और वो फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर के भेज दिया उन्होंने, भैया वहाँ से कॉल लेटर आ गया बम्बई से कि आपको बम्बई में जाना है। दिल्ली से कॉल लेटर आया कि बम्बई में इंटरव्यू देने जाना है। अब चाचा मुझे लेकर गए इंटरव्यू में। अब वहाँ जजीज़ में जाकिर भाई के पापा बैठे हुए थे, अल्लाह रखा खां साहब, जाकिर हुसैन के फादर, और दूसरे जज थे वैभव नागेशकर, वो भी मंझे हुए तरन्नम, अपने इस दौर के बहुत अच्छे तैयार तबले वादक। और तीसरे जज थे हिंदुस्तान की पहली स्त्री तबला वादक आबाद मिस्त्री जी। तो तीनों दिग्गज जज बैठे हुए थे, लेकिन मैं तो बच्चा था, मैं तो सिर्फ एक ही आदमी को जानता था, अल्लाह रखा खां साहब को, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ बहुत देखी थी मैंने टीवी में और वैसे, तो मैं पहचान गया। लेकिन मैं घबराया नहीं, मैंने फुल कॉन्फिडेंस में बजाया, धुआं उठा दिए स्टेज पे, ऐसा बजाया। और जितने भी मराठी थे ना सब परेशान हो गए, कहाँ वास्तव ऐसे करने लगे सब, मतलब क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है, ऐसा तैयार बजा के उठा, परेशान हो गए सब, इतना तैयार बजाया। अल्लाह रखा खां साहब इम्प्रेस हो गए, उन्होंने ऐसे इशारा किया, ए बच्चा इधर आ। तो मैं गया उनके पास, तो मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो मैंने बाप का नाम नहीं बताया, मेरे दादा का नाम बताया जानबूझ के। मैंने कहा मैं बंदे हसन का पोता हूँ, बंदे हसन आगरे वाला, जानबूझ के। तो वो खड़े हो गए सीट पे से और मुझे ऐसे गले लगा, हग किया। फिर अपनी जेब में से कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड, और मुझे दिया और कहने लगे तुम शाम को मेरे क्लास में आओगे। मैंने कहा हाँ ज़रूर आऊँगा। फिर मैं शाम को मेरे चाचा को लेकर उनकी क्लास में गया, तो वो बैठे हुए थे, बड़ा सारा हॉल था शिवाजी पार्क में, स्विमिंग पूल में बड़ा हॉल था, वहाँ पे क्लास चल रहे थे, बहुत सारे बच्चे सीख रहे थे। उन सबको साइलेंट कर दिया, बोले सब चुप हो जाओ, इसको सुनो। मुझे बजाने को कहा, मैंने आधा घंटा बजाया, तो सब मंत्रमुग्ध हो गए, सब पूछने लगे तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है। मैंने कहा ये मेरे साथ जो आए हैं ये मेरे अंकल, ये मेरे गुरु हैं। तो तौफीक भाई है ना, तौफीक भाई, जाकिर भाई के 2nd नंबर के भाई, उन्होंने मेरे साथ लहरा बजाया था। वो मुझसे कहने लगे रुक जाओ, तुम यहाँ बम्बई में रह जाओ मेरे पास, हम साथ में काम करेंगे। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाईजान मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं क्या काम करूँगा आपके साथ, मेरी तो उम्र सीखने की है, काम करने की नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो कहने लगे नहीं, तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा ये आपकी मोहब्बत है,
ये अनुभव रहा मेरा। और फिर 5वीं क्लास से लेके 89 तक 10th में मैं पास हुआ, तब तक मुझे वो स्कॉलरशिप मिलती रही। फिर मोरारी बापू से पहली बार मुलाकात हुई मेरी 92 में। अच्छा, इस दौरान यूथ फेस्टिवल में भी मैं हिस्सा लेता रहा, जूनियर में और सीनियर में। जूनियर सीनियर में जब तक मैंने पार्ट लिया, किसी को फर्स्ट आने नहीं दिया मैंने। समझ रहे हैं आप? अच्छा, वो मेहंदी साहब होते तो तय होता है कि ये पहला रैंक तो मेहंदी ही लेके जाएगा, ऐसा था। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी, गुरुजनों का आशीर्वाद था, दोस्तों की दुआ थी, भाइयों की और माँ बाप के आशीर्वाद थे कि नोटिस बोर्ड पे नाम देख के लोग भाग जाते थे वापस। नोटिस बोर्ड पे नाम पढ़ते थे ना लड़के, तो वापस भाग जाते थे कि રાજકોટ આવ્યો, રાજકોટ આવ્યો, હવે નંબર નહીં આવે ભાઈ, ભાગો પાછા, એવું કરતા છોકરાઓ। અને અમુક જણ તો છે ને આમ હાથ જોડતા મારી પાસે આવતા, મને સાઈડમાં લઈ જતા, એ મોટા નામ લઈ લે ને પાછું, એ મોટા અમારો વારો આવવા દે ને, એવું કરતા। અમુક મિત્રો તો મને કહેતા હવે રેવા દે ને, હવે તો તે હેટ્રિક મારી લીધી, હવે અમારો વારો આવવા દે। પછી હું કહેતો આ છેલ્લી વાર છે, હવે જવા દેજો, હવે નહીં આવું, આ છેલ્લી વાર છે, હવે નહીં આવું। पंडित ओमकारनाथ में जूनियर सीनियर में फर्स्ट आया, यूथ फेस्टिवल में फिर राज्य कक्षा पे भी जूनियर सीनियर में फर्स्ट आया। उसमें दोनों में फर्स्ट आने के बाद फिर मैं दोबारा नहीं गया। लोग बार बार जाते रहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने औरों को चांस दिया। जूनियर में फर्स्ट आ गया, फिर दोबारा नहीं गया। सीनियर में फर्स्ट आ गया, फिर दोबारा नहीं गया। नेशनल लेवल में भी मैं बजाया, उसमें भी फर्स्ट आया मैं। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि जहाँ भी गया मैं फर्स्ट आया। तबले की एग्ज़ाम भी जिसमें दी उसमें कभी फेल नहीं हुआ। मैंने शिक्षा विशारद किया विशेष योग्यता के साथ, अलंकार किया विशेष योग्यता के साथ, कभी फेल नहीं हुआ। एग्ज़ाम लेना भूल जाता था, मेरी रुला देता था मैं। खो जाते आप बजा रहे हो, એ પરીક્ષા લેવાનું ભૂલી જાય। અમુક વાર તો અમુક પરીક્ષક છે કરે એવું થતું કે પ્રશ્ન પૂછવાનું ભૂલી જાય ભાઈ, પ્રશ્ન પૂછવાનું ભૂલી જાય, આંખ બંધ કરીને બેઠો જ રહે। થોડીક વાર સુધી પછી હું મારું તબલું બંધ કરી દઉં ને તો એ બેઠો જ હોય, આંખ ખોલે જ નહીં, સમાધિ લાગી જાય એને। પછી મારે કેવું પડે સર આંખ ખોલો હવે। એવું બન્યું છે। આ આબાદ મિસ્ત્રી અલંકારની એક્ઝામ લીધી ને મારી, તેને સમાધિ લાગી ગઈ હતી। મારું તબલું સાંભળીને રડવા માંડી, આંસુડા કાઢી નાખ્યા મેં ફાઇનલ યરમાં અલંકારમાં। એ મને કે તે મારા ગુરુના સાક્ષાત્કાર કરાવ્યા મને, आमिर हुसैन खान साहब ना। आमिर हुसैन खान साहब के साक्षात दर्शन करवा दिए तूने बेटा, रोने लगी वो। और मेरे को डिस्टिंक्शन दिया अलंकार में। और मुझे फिर बाद में इतनी प्रभावित हुई, वो ये चाहती थी कि मैं घंटा बनवा लूँ उनसे, तो मुझे लालच दिया, बोले खेतवाड़ी में मैं तेरा सोलो रखूँगी। અને રાખ્યું, મારું સોલો રાખ્યું બોમ્બેમાં। અને અલ્લાહ રખા સાહેબને કાર્ડ પણ આપ્યું મેરા સોલો સુનને આના આપ। ત્યાંથી તલના લાડુ અને માંડવી પાક અને તલના લાડુ, મમરાના લાડુ બધું લઈને ગયો હતો એમના માટે। અને એમને ખવડાવ્યા હાથે, મારા હાથે ખવડાવ્યા, તો એમને બહુ પસંદ આવ્યા। પછી એમને ટેમ્પરેચર હતું, બહુ તાવ હતો ખૂબ અને માથું દુખતું હતું। તો મને કે બેટા आबान से कहना मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये लड्डू मुझे बहुत पसंद आए, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू मेरे लिए इतनी कीमती चीज़ लाया। मैंने बोला कीमती नहीं है, बहुत सस्ती है। तो ऐसा सफ़र रहा मेरा। फिर 92 में कलकत्ता से एक सरोद वादक आए रामकृष्ण आश्रम में। एक्चुअली वो स्पीक मैके के प्रोग्राम में आए थे। तो स्पीक मैके में घूमते घूमते पूरे गुजरात में सब राजकोट आए। तो राजकोट में उनका तबले वाला बीमार पड़ गया तो वो कलकत्ता चला गया उनको छोड़ के। बाबा अलाउद्दीन जो थे ना सरोद वादक, उनके पोते दीकरा ना दीकरा विद्युत खां राजकोट आए। तो उनका तबले वाला बीमार पड़ गया, तो मिशन में, रामकृष्ण मिशन में वो ठहरे। तो वो हेड जो थे ना जितात्मानंद जी, उनसे कहने लगे, बोले मुझे तबला वादक की ज़रूरत है, मुझे द्वारका, सोमनाथ और मोरारी बापू के पास जाना है और एक तबला वादक की ज़रूरत है। तो जितात्मानंद जी बोले हमारे पास ए ग्रेड का एक लड़का है उसका नाम है मेहंदी हसन, वो तुम्हारे साथ बजा सकता है। तो बोले वो मैं जब तक सुनूंगा नहीं मैं उसको मौका नहीं दूंगा। तो कहने लगे सुन लो, उसमें क्या है, अभी हम फ़ोन करते आ जाएगा। तो एमणे મને ફોન કર્યો, જીતાત્માનંદજીએ હેડ મંત્ર દીક્ષા લીધેલી છે,
ઠાકોરને, કેમ કે ઠાકોરને હું નાનપણથી બહુ માનું છું અને મંત્ર દીક્ષાર્થી છું. 94 में ली थी मैं दीक्षा. तो जितात्मानंद जी तो मुझे बचपन से जानते हैं, मैं छोटा था तब से, क्योंकि मैं ठाकुर से छोटेपन से जुड़ा हुआ आश्रम से. तो मैंने कि ये विद्युत आया हुआ है और वो तुझे सुनना चाहता है, क्योंकि उसको तबले वाले की ज़रूरत है. अगर तू पसंद आ गया तो वो तुझे लेके जाएगा, 2-3 प्रोग्राम मिलेंगे, तेरी रोकड़ी हो जाएगी. तो मैंने बोला चलो ठीक है आते हैं. तो હું મારા તબલા લઈને ગયો गेस्ट हाउसમાં. આશ્રમનું જે गेस्ट हाउस છે ને ત્યાં. तो मैंने तबला मिलाना शुरू किया ना, तो वो बोले बस હવે નથી સાંભળવું. तबला मिलाने के अंदाज पे से समझ गया वो कि ये बजाएगा. बोले अब पैक कर दे तबला, ज़रूरत नहीं, शाम को आ जाना. પછી સાંજે ગયો ને તો એ મને લઈને દ્વારકા ગયા. પછી દ્વારકામાં અમે એક પ્રોગ્રામ કર્યો, જોરદાર વગાડ્યું મેં એની સાથે. પછી સોમનાથમાં એક પ્રોગ્રામ કર્યો, ત્યાં ખતરનાક વગાડ્યું. પછી મહુવા પહોંચ્યા અમે. તો મહુવા ગયા ને તો તલગાજરડામાં બાપુના ગામમાં બાપુના ઘરમાં એક પ્રોગ્રામ કર્યો. હનુમાનજીની મૂર્તિ જ્યાં છે એમના ઘર પાસે, तो ત્યાં एक प्रोग्राम કર્યો. तो बापू ध्यान से सांभळे. बापू का ध्यान तबले पे ही था, तबले के सामने ही बैठे हुए थे और गौर से देखे जाए और मुझे बहुत दाद दे रहे थे. फिर जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ ना तो बापू ने मुझे बुलाया. बोले इधर आ बच्चा. कहने लगे तारो नाम शू है? मैंने कहा बापू मेरा नाम मेहदी हसन है. तो बोले ओह बहुत बड़ा. किसका शिष्य है तू? तो मैंने पहले मेरे चाचा का नाम दिया कि जिंदे हसन खान साहब से सीखा है मैंने. फिर दूसरा नाम नितेश जी का दिया, तीसरा नाम अजीमुद्दीन खान साहब का दिया, फिर चौथा नाम तारी साहब का दिया कि तारी साहब से भी सीखा है, दिल से गुरु माना है मतलब. और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमाउंट उन्होंने दिया मुझे पहला 25,000 रुपये. मतलब प्रोग्राम में इतनी बड़ी रकम अगर किसी ने दी है मुझे पहली बार, तो पहली बार बापू ने दी थी और दूसरी बार नंदन काका ने दी थी. सप्तक में मैंने बजाया था. अहमदाबाद में जो सप्तक होता ना, वहाँ मैंने बजाया था. तब नंदन काका ने भी 25,000 दिए थे मुझे. हाँ नवरात्रि में तो मिलता है, नवरात्रि में 70,000 80,000 मिलते हैं, लेकिन वो 9 दिन के मिलते हैं. लेकिन ये एक दिन में 3 घंटे के प्रोग्राम के 25,000 मेरे लिए बड़ी बात थी उस ज़माने में. हाँ उस ज़माने में 25,000 92 में बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए. तो હું કવર જોઈને ઘબરાઈ ગયો, ધ્રુજવા માંડ્યો હું. તો હું પાછો ગયો કવર લઈને બાપુ પાસે. મેં કીધું બાપુ આ મારું કવર નથી, આ કોઈક બીજાનું ભૂલથી આવી ગયું છે. આટલા તો ક્યારેય નથી મળ્યા એમ. હા બરાબર. મેં કીધું બાપુ આ ભૂલથી કોઈક બીજાનું કવર આવી ગયું છે મારી પાસે. તો બાપુ મુસ્કરાને લગે. બાપુ બોલે આ હનુમાનજીના પ્રસાદ છે અને તારા માટે જ છે ને, તું જ રાખ અને તારે રાખવાનું છે ફરજિયાત. फिर मैंने रख लिया माथे पे लगा के. ऐसा हुआ. फिर उस दिन से बापू मुझे बार बार बुलाने लगे. कई बार खाली गाड़ी आती थी मुझे लेने महुआ से उनकी. बापू जिस गाड़ी में बैठते हैं ना वो गाड़ी मुझे लेने आती थी. उनका ड्राइवर मुझे लेने आता था कि चल बापू बुला रहे हैं. तो ये मैंने राजकोट थी અહીંયાથી લઈ જાય. અને ત્યાં કોઈ બી આર્ટિસ્ટ આવે ને તો મારે વગાડવાનું. હા કોઈ બી આર્ટિસ્ટ આવે મુંબઈથી, કલકત્તાથી, દિલ્હીથી, તો સંગતમાં મને બોલાવે. મોટા મોટા આર્ટિસ્ટો સાથે મેં સંગત કરી છે મહુવામાં, क्योंकि बापू को बहुत भरोसा है मुझ पे, बहुत मोहब्बत है. हाँ. અને પછી કથામાં મેં હમણાં છેલ્લા 4-5 વર્ષ થયા, મને 5 વર્ષ થયા શરૂ કર્યું. કેમ કે હું વેમ્બલી કથામાં ગયો ને થોડા ટાઈમ પહેલાં. હું તો SNKમાં જોબ કરતો હતો. થોડા ટાઈમ પહેલાં મને 5-1 વર્ષ પહેલાં ફોન આવ્યો કે તારે ફરવા આવવું છે લંડન. બાપુનો ફોન આવ્યો કે તારે લંડન ફરવા આવવું છે. તો મેં કીધું બાપુ આપ મને ફરવા લઈ જાઓ ને, હું ના પાડું બને કોઈ દિવસ. તો હું તો રાજી થઈ ગયો. મેં પાસપોર્ટ મારું મોકલી દીધું અમદાવાદ. बापू कीधु आज के तेरा पासपोर्ट मोकली दे. तो मैंने भेज दिया, मेरा वीज़ा आ गया. फिर मैं वेम्बली गया. तो वेम्बली गया तो इत्तेफाक से जाकिर भाई भी आए थे वहाँ पे कथा में. तो जाकिर भाई से भी मुलाकात हो गई. और उस दिन मेरा बर्थडे भी था 18 अगस्त को. जिस दिन जाकिर भाई है उस दिन मेरा बर्थडे भी था. जाकिर भाई से मुलाकात भी हो गई और बापू से बात भी हुई मेरी. बापू का आशीर्वाद लेने गया. तो बापू ने पूछा मुझसे आजकल तू क्या कर रहा है. तो मैंने कहा बापू जॉब कर रहा हूँ. तो बापू ने पूछा तेरा गुजारा हो जाता है जॉब में. तो मैंने कहा बापू 2-2 3-3 लोन चल रही है, गुजारा बड़ा मुश्किल होता है. तो कहने लगे कोई बात नहीं, चल हनुमान जी सब ठीक करेंगे, अच्छा हो जाएगा, मैं दुआ करूँगा. फिर कहने लगे जूनागढ़ आना तो कथा में. हम यहाँ से इंडिया जाएंगे ना तो तू जूनागढ़ आना कथा में. ऐसा कहलवाया मुझे. इंडिया आया तो इंडिया में मुझे हरीश चंद्र जी का फ़ोन आया
कि मेहंदी तुझे जूनागढ़ कथा में आना है शनिवार से। तो मैंने फिर फ़ोन किया बापू को, क्योंकि शनिवार को मुझे नेशनल में बजाना था। दिल्ली की एक नेशनल कॉन्सर्ट मिली, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था ये। नेशनल में गुजरात में किसी तबला वादक ने आज तक परफॉर्म नहीं किया, सोलो तबला किसी तबला वादक ने नहीं किया। मेरे 3 गुरु थे, 3 में से किसी को मौका नहीं मिला पूरी ज़िंदगी में, और मुझे मिल गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, आज तक कोई नहीं कर पाया। तो मैंने बापू से माफ़ी मांगी। मैंने कहा बापू मैं रविवार से ज्वाइन करूं तो चलेगा? तो बापू ने पूछा क्यों, क्या बात है? मैंने कहा बापू नेशनल में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है, मेरे लिए बहुत बड़ा ये मौका है, आप दुआ कीजिए कि मैं अच्छे से बजा लूँ। तो कहने लगे तने જ્યારે મોજ પડે ત્યારે આવજો બેટા જા અને મારા આશીર્વાદ છે, જમ કે બજાના। એટલે પછી શનિવારે મેં નેશનલનું મારું રેકોર્ડિંગ કર્યું દિલ્હી રેડિયોથી, જે પ્રસારિત થયું, આખા હિન્દુસ્તાને સાંભળ્યું હતું। એટલે એવું થયું કે શનિવારે નેશનલ પકડ્યું ને રવિવારથી બાપુ સાથે જોડાયો તો હજી સુધી જોડાયેલો છું। હવે અત્યારે આજના જે યંગસ્ટર્સ છે કે નાના બાળકો છે એ પણ નાનપણથી શીખતા હોય છે, અથવા જે ઘણા કલાકારો છે એ પણ શીખતા હોય છે। તો હવે તમારું શું વિઝન છે? આટલા વર્ષો થયા, તમે તો નાનપણથી જ ગઢથુથીની અંદર તમને તબલા, તમે કીધું કે પહેલું જ મેં સાંભળ્યું, 3.5 વર્ષની ઉંમરથી તમે વગાડો છો। તો મહેંદી હસન ખાન એમનું શું હવે અહીંયા આ લેવલ સુધી પહોંચ્યા પછી એમનું શું વિઝન છે કે મારે આ લેવલ હજી, કે ભલે હું અહીંયા પહોંચી ગયો પણ મારે હજી આ લેવલ સુધી પહોંચવું છે, અથવા તો મારે આમાં કંઈક કરવું છે કે જેથી વધારે લોકો આ તરફ વળે? मेरा नई पीढ़ी को ये कहना है कि अगर गाने बजाने में कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कि आगे बढ़ना है तो पेशेंस रखें, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल की पीढ़ी में ना सब्र नाम को नहीं है, सब्र बिल्कुल नहीं है। सब्र रखना बहुत ज़रूरी है और मेहनत करना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जो किया है, 8-8 घंटे के चिल्ले खींचता था मैं रोज़ाना, 8 घंटे का चिल्ला खींचता था मैं, वो आज ये लोग नहीं कर सकते। खुद मेरा बच्चा भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि वो करे लेकिन नहीं कर सकता, मुझे पता है इतना वक्त उसके पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है वो, तो इतना टाइम नहीं निकल सकता। और बच्चे भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो 8 घंटे का चिल्ला नहीं खींच सकते, मुझे पता है। ये वो दौर नहीं है, हमारा दौर अलग था। अब ये मोबाइल का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। अब इन लोगों के लिए बल्कि और आसान हो गया कि टेक्निक आ गई है। टेक्निक ऐसी आसान टेक्निक आ चुकी है इन लोगों के लिए कि ये लोग थोड़ा कम वक्त देंगे तो भी चलेगा, जल्दी कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखें। तो नई पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखें, सब्र रखें और मन लगा के करें, और इसको इबादत की तरह करें। इसको इबादत की तरह करें कि हम पूजा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये समझ के करें। इसको मैकेनिज़्म ना बना लें, टेक्निकल ज़्यादा ना करें कि कसरत ना समझ लें इसको कि हम कसरत कर रहे हैं। ये कसरत नहीं है, ये इबादत है। इसको इबादत समझ के करें कि हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, ईश्वर को राज़ी कर रहे हैं, ये इबादत है हमारी। ये समझ के करें तो अल्लाह बहुत उनकी मदद करेगा, ईश्वर मदद करेगा, और फिर देखो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। बस इतना ही कहूँगा मैं। એટલે ધીરજ જરૂરી છે કંઈ પણ શીખવા, અને સાથે જ અત્યારે તો શું છે, બધા લોકોને ક્લાસ ને કેટલી બધી ફેસિલિટીઝ, એમને જેમ વાત કરી એમને તો સામાન્ય જીવનની અંદર પણ એટલો સંઘર્ષ હતો કે એમની પરિસ્થિતિ ત્યારે એ એટલી બધી બરાબર નહોતી, છતાં પણ નાનપણથી એમનો શોખ એમને જાળવી રાખ્યો, પ્રેક્ટિસ કરતા ગયા। અને ખાસ વસ્તુ કે એને કસરત કે ભાઈ હું પ્રેક્ટિસ કરું છું એ સમજીને નહીં, પણ એ પ્રેમ કે ભાઈ ના ના આ તો મારા જીવનનો એક ભાગ છે, આ નહીં હોય તો મને મજા નહીં આવે। અને એમને જે કીધું કે ભાઈ હું ડિજિટલ મીડિયામાં એટલો બધો નથી, એ હું મને ઘણા મિત્રો કહે છે કે એમને એમના ઘણા મિત્રો કહે છે કે ભાઈ તમે થોડાક વિડીયોઝ ને તમારી ચેનલ બનાવો, નહીં કે ના મેં અપની દુનિયામાં રહેના વાલા બંદા હો, એમનું એવું માનવું છે। પણ અમારા બધાનો આગ્રહ છે અને દર્શક મિત્રોનો પણ આગ્રહ છે કે તમે બની શકે તો એ તરફ થોડા આવો। ડિજિટલ મીડિયાની લોકોને પણ શીખવા મળશે, એ ગણતરીથી આવો કે ભાઈ આપણે લોકોને વધારે શીખવા મળે, એવો આગ્રહ છે। અને છેલ્લે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ તો આટલા મોટા કલાકાર સાથે
અમે અહીંયા આવ્યા હોય એમને રૂબરૂ અમારે વાતચીત કરવાનો મોકો મળ્યો હોય અને અમે જો એમને લાઈવ સાંભળવાનું ચૂકી જઈએ